Good morning, I am Garima. This is Jago Himachal 365 TV. डर के नहीं डट के, and you are watching Hillquist News Channel. Let's start with the headlines. Dragon Boat Festival and Paragliding Festival to pull tourists post lifting of COVID restrictions. Curb in force, most eating joint closed in Dharamshala. Assam opens 300-bed COVID hospital in stadium built in 20 days by DRDO. Ready for talk if farmers raise logical objections to laws. June 19 last date for first dose of 45 plus priority group. 1,700 get jab in drive-by SJVNL. Open mall eateries on line of Chandigarh, says owner. Mamta vows to rally opposition rule state behind farmers. Paddy MSP up rupees 72. Record 6,148 COVID deaths in India in 24 hours, 94,052 lakh new cases. 8 children among 11 die in Malwani building collapse in Mumbai. Gangster Jaipal Bhullar Jassi Kharar killed in encounter in Calcutta. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है हिमाचल 365 टीवी. This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं अनुराग. मैं शिल्पा शर्मा. मैं मोनिका राणा. मेरा नाम है आशीष. मैं पूजा दीवान. ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज. हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ. राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ. Now news in detail. Dragon Boat Festival and Paragliding Festival to pull tourists post lifting of COVID restrictions. Already made by the lockdown like restrictions due to the COVID-19 pandemic, the tourism industry of Dalhousie and Chamba in Himachal Pradesh may get some relief as the district administration has announced to hold a 3-day Dragon Boat Festival and Paragliding Festival. The administration hopes that both the events would prove to be the biggest tourist attraction. Chamba Deputy Commissioner DC Rana said that the administration had planned to hold a 3-day Dragon Boat Festival in Chamera, Dragon Boat Festival in Chamera Lake at Taleru and a 3-day paragliding event at Khajiar near Dalhousie in the month of October. The idea is to attract tourists by providing them with colorful and eventful activities to keep their enthusiasm alive, said Rana. Curbs in force, most eating joints closed in Dharamshala. Despite the government allowing restaurants and eating joints to function till 2 p.m. from June 7, more than 90% units have still not started their operations. Most of eating joints and restaurants in tourist city of Dharamshala are still lying closed. The owners are alleging that under the present set of guidelines issued by government, it wasn't possible to operate. They are also alleging that many eating joints might find it difficult to restart even after the lockdown restrictions. Assam opens 300-bed COVID hospitals in stadium built in 20 days by DRDO. The Assam government on Thursday opened a 300-bed COVID-19 hospital at a stadium complex in Guwahati to combat the ongoing pandemic. Constructed in 20 days at a cost of 21.46 crore, the hospital was built with help from Defence Research and Development Organization DRDO and handed over the state government, which completed first month in office on Thursday. Ready for talks if farmer raise logical objections to laws. Hours after government said on Wednesday that it was ready to talk to farmers provided they logically point out their specific objections to agriculture reform laws, the Congress sought the removal of Agriculture Minister Narendra Tomar, terming his remark insensitive at the cabinet briefing today. Tomar said the government respected the agitating farmer, which was why it organized 11 rounds of talks with them. The government of India under the leadership of Narendra Modi has a lot of respect for farmers. That is why the government will be ready to talk with the farmers whenever they want to talk, but we have repeatedly urged farm unions to logically point out objections to relevant provisions of law, and we will listen to them and also attempt resolutions to their concern, to minister said.
हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। June 90 last date for first dose of 45 priority group. The state government has set June 19 as the cutoff date for the first dose of the COVID vaccine for the over 45-year age category. Healthcare worker, frontline worker and other prioritized group, person falling in their categories, may get in the first dose of the vaccine before June 19, said a spokesperson for the health department. He said that vaccination session for the above 45-year and priority group would be held on Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday, while Monday and Thursday, June 14 and 17 will be reserved for the 18 to 44-year age group, he added. 1,700 get jabbed in drive-by SJVNL. About 1,700 person were vaccinated during a 3-day COVID vaccination drive organized by Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVN) here. The free campaign was held at Shakti Southern headquarters of the SJVNL here today. The benefited individual included SJVN employees, contractual workers deployed by various contractors, secretary, personal staff, eligible members of their family and people from the vaccinated. Nanlal Sharma, Chairman and Managing Director SJVN, said the objective was contribute toward combating the second wave of the pandemic and facilitating easy access to vaccine to people. The drive was initially planned for 2 days, but it witnessed an overwhelming response from the local populace, so it was extended for 1 more day. Open malls, eateries on lines of Chandigarh, says owner. Involved in similar business in the holy city are also seeking the reopening of their establishments. Properties of hotels, restaurants, gym owner and officials of mall multiplexes are squirming with the piling up of losses. They say that their business has taken a backseat after drastic steps by the government to restrict the footfall of attendees and other curbs on their professions. Navdeep Singh Grover, proprietor of a restaurant in a posh area of the city, said takeaway and home delivery didn't provide them sustainable income. Mamata was to rally opposition rule state behind farmers. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Wednesday said there should be a trade union of central government's machinations against an individual state government. I think there should be union of state government in federal structure. All chief ministers should be together. If an individual state is harassed by them, central government, then all other states will fight against the step, Banerjee said. Banerjee, who has been having a running feud with the Narendra Modi-led government on a series of issues, was taking to media person after a meeting with Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait and Yudhvir Singh at the state secretariat Nibana here. हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। Paddy MSP up ₹72. The centre today increased the minimum spot price of kharif crops for the marketing season 2021-22, giving the maximum hike to pulses and oilseeds in bid to win farmer away from water-guzzling paddy. The price of common grade paddy, the largest cereal of seasons, has been increased from ₹1,868 to ₹1,940 a quintal, a hike of ₹72.
which the farmer termed meager compared what other crop had got. The MSP for grade a paddy too has been hiked by rupees 72 to take it to rupees. Record 6,148 COVID deaths in India in 24 hours, 94,052 lakh new cases. India reported 94,052 new COVID-19 cases, taking infections tally to 2,91,83,122, while the death toll climbed to 3,59,676 with 6,148 fatalities being recorded in a day, the highest since the outbreak of the pandemic, according to the Union Health Ministry's data updated on Thursday. Bihar reconciled its figure and put the total number of fatalities caused by the disease at 9,429 after verification. It said the active cases in the country have reduced to 11,67,952 after 60 days, comprising 4% of total infections, while the national COVID recovery rate has improved to 94.77%, the data said. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं उजलत ईमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हमीरपुर में 52 लोग निकले कोरोना संक्रमित। सब्जी मंडी दो सड़का में मृत मिला बुजुर्ग। 59 साल बाद बना शहीद के नाम का गेट। महंगाई ने पीस दी आम जनता। शिक्षा विभाग करे ऐप का निर्माण। 12 पेयजल योजनाओं पर खर्च होंगे 118 करोड़। 6 खोखा धारकों को नोटिस। नकली केवाईसी सत्यापन के बहाने हिमाचलियों से हो रही ठगी की कोशिश, एडवाइजरी जारी। सप्लाई चेन गिरने से बीबीएन के उद्योगों में गिर गया उत्पादन। लैपटॉप की जगह मेधावियों को अब टैब देगी हिमाचल सरकार। नशीली दवा उत्पादन और तस्करी में फंसी 4 फार्मा कंपनियों की ईडी करेगा जांच। भारी बारिश से मलाड में ढही 4 मंजिला इमारत, 11 की मौत, मालिक और ठेकेदार पर दर्ज होगी एफआईआर। टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ कैंसर रोगियों का उपचार। दैनिक मौतों ने ध्वस्त किए अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 6,148 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमित ससुर को पीठ पर उठाकर बहू पहुंची अस्पताल, फोटो खींचते रह गए लोग। वाराणसी में स्कॉर्पियो सवार पीएनबी बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 41 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में 52 लोग निकले कोरोना संक्रमित। जिला में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई है। इसके साथ ही बुधवार को संक्रमण के 52 नए मामले सामने आए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में 25 लोग कोरोना संक्रमित निकले, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार उपमंडल परिसर के तहत आने वाले चौहान क्षेत्र के 75 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण के बाद मौत हो गई। महिला 7 जून 2021 को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित निकली थी। होम आइसोलेशन में ही बुधवार के दिन महिला ने दम तोड़ दिया। बुधवार को संक्रमण से हुई एक मौत के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 241 पहुंच गया। सब्जी मंडी दो सड़का में मृत मिला बुजुर्ग। हमीरपुर में सब्जी मंडी दो सड़का के पास एक बुजुर्ग महिला बेहोशी की हालत में पड़ा था। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाना हमीरपुर को दे दी गई। पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस 108 के माध्यम से हमीरपुर अस्पताल ले आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि शव की शिनाख्त तो नहीं हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर के समय सब्जी मंडी दो सड़का में एक बुजुर्ग व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ लोगों ने देखा तो उसकी सूचना तुरंत हमीरपुर पुलिस को दे दी गई। हमीरपुर पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्ति को बेहोशी की हालत में हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग बाबा के रूप में बाजार में भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके घर परिवार कहाँ है, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई। ऐसे में शव को मुर्दा घर में रखा गया है ताकि अगर शव की पहचान होती है तो उससे परिजनों को सौंपा जा सके।
59 साल बाद बना शहीद के नाम का गेट। देश की आन बान और शान की खातिर शहादत का जाम पीने वाले ग्राम पंचायत गलोड़ खस के वीर सपूत प्रताप सिंह को सम्मान पाने में 59 साल लग गए। आखिर वर्षों बाद गलोड़ खास में प्रताप चौक पर अमर शहीद प्रताप सिंह की याद में स्मृति गेट का निर्माण किया। बुधवार के दिन संबंधित पंचायत प्रधान संजीव शर्मा सहित अन्य बुद्धिजीवी लोगों ने इस स्मृति गेट को लोकार्पण किया। अमर शहीद के परिजन अरसे से यहां अमर शहीद के नाम पर स्मृति गेट बनाए जाने की मांग कर रहे थे। परिजनों की इस मांग को पंचायत प्रधान के प्रयासों से पूरा किया गया है। बता दें कि गलोड़ गाँव में महंत राम ठाकुर के घर जन्मे प्रताप सिंह महज 16 साल की आयु में सेना में भर्ती हुए थे। उनका जन्म सन 1931 को हुआ था। वर्ष 1962 में भारत और चीन की लड़ाई में नेफा सेक्टर में इस वीर सपूत ने देश की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया था। महज 31 साल की आयु में शहीद हुए प्रताप सिंह अपने पीछे पत्नी बेटी को छोड़ गए थे। उनका पालन पोषण उनके छोटे भाई धर्म सिंह ने किया। अमर शहीद के नाम पर एक छोटा सा बोर्ड क्षेत्र में लगाया गया था जिस पर प्रताप चौक अंकित किया गया था। महंगाई ने पीस दी आम जनता। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और उपभोक्ताओं की भावनाओं को धराशायी किया जा रहा है। जारी प्रेस बयान में जिलाध्यक्ष ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि महंगाई के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर भाजपा नेतृत्व और सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार के कुप्रबंधन के कारण महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही। कोरोना संकट में मुख्य तौर पर बेरोजगारी के कारण कई परिवार तो दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। गाँव में अगर मनरेगा का सहारा न होता तो स्थिति बड़ी ही संकटपूर्ण हो जाती। राजेंद्र जार ने कहा कि एक समय मनरेगा का सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी निवर्तमान कांग्रेस नेतृत्व सरकार का उपहास उड़ाते थे। इन परिस्थितियों में जनता बेबस है। वह तो कोरोना भूल चुकी है और उसे उससे भी बड़ी समस्या आज महंगाई नजर आ रही है। सरकार ने तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल वर्ग को भी नहीं बख्शा है। राशन डिपो में भी दालें, खाद्य तेल व अन्य खाद्य पदार्थ बड़ी कीमत पर दिए जा रहे हैं। वहां भी खाद्यान्न की मिकदार कम कर दी गई है। मध्यम वर्ग के लिए भी दालें 20 से 25 रुपए महंगी और 90 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल 215 रुपए में मिल रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 45 वर्षों में आज भाजपा के राज में देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बेवजह कोसना छोड़कर उन्हें जनता की इन समस्याओं को सुलझाने में अपना समय लगाना चाहिए। शिक्षा विभाग करे ऐप का निर्माण। शिक्षा विभाग अपने सूचना तंत्र को नियोजित करने हेतु विशेष सॉफ्टवेयर या ऐप का निर्माण करे ताकि शिक्षकों से जुड़े डाटा बार बार ना मांगने पड़े और नियमित रूप से हर वर्ष SCR अपडेट करने तबादलों के बाद रिलीव ज्वाइन होने की सूचना ई सर्विस बुक अपडेट रिक्त पदों का दैनिक बदलता विवरण सही रूप से मिल सके। उक्त मांग राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन, प्रदेश महासचिव विजय हीर, स्टेट प्रतिनिधि संजय ठाकुर, देशराज संघ प्रचारक ओम प्रकाश, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, जिला इकाइयों के प्रधान विजय बरवाल, संजय चौधरी, शेर सिंह, रविंद्र गुलेरिया, राकेश चौधरी, डॉक्टर सुनील दत्त, नीरज भारद्वाज, रामकृष्ण, अमित छाबड़ा, देवराज शर्मा ने प्रदेश सरकार से की है। संघ के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न डाक मांगी जाती है जिसे कुछ श्रेणियों में बांटकर उसकी सूचना ऐप या सॉफ्टवेयर से ली जा सकती है। 12 पेयजल योजनाओं पर खर्च होंगे 118 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत हमीरपुर जिला की 12 और पेयजल योजनाओं पर लगभग 118 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के लिए जिला स्तरीय समिति ने बुधवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इन 12 पेयजल योजनाओं के शेल्फों को अनुमोदित कर दिया है। अब इन्हें मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। उपायुक्त देवश्वेता बनिक की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि 31 मार्च 2021 तक मिशन के तहत जिला के कुल 1.12 लाख घरों में 93,348 घरों में नल लगाए जा चुके हैं, जबकि इस वित्त वर्ष में 6,439 घरों में नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत जिला की 51 पेयजल योजनाओं के लिए 232 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इनमें से 30 योजनाओं के कार्य इसी वर्ष पूरे कर लिए जाएंगे। देवश्वेता बनिक ने कहा कि 12 अन्य योजनाओं के शेल्फों को भी मंजूरी मिलने के बाद हमीरपुर जिला में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों में जिला में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने जिला के सभी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के साथ साथ पानी की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि पेयजल स्रोतों और भंडारण टैंकों की सफाई तथा पानी की टेस्टिंग नियमित रूप से की जानी चाहिए। 6 खोखा धारकों को नोटिस। बस स्टैंड हमीरपुर के बिल्कुल साथ सटी जिस पुरानी खोखा मार्केट की
वो दुकानदार जो कोर्ट में केस हारने के बावजूद पीछे कॉम्प्लेक्स में बनी गई दुकानों में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आधा दर्जन के करीब इन दुकानदारों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करते हुए पीछे बनी हुई दुकानों में शिफ्ट होने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि 1 सप्ताह में ये दुकानदार नई दुकानों में शिफ्ट नहीं होते तो प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। बता दें कि करीब 6 ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने नए कॉम्प्लेक्स में भी दुकानें ले ली थी और पुरानी भी नहीं छोड़ रहे थे। उल्टा ये कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कुछ माह पूर्व कोर्ट में ये केस हार गए थे और ऐसे में इन्हें नई दुकानों में शिफ्ट होना पड़ता था, लेकिन ये नहीं जा रहे। इसके अलावा प्रशासन ने 4 अन्य दुकानदारों को भी 15 दिन की मोहलत दी है कि वे नई दुकानें अलॉट करवा लें, अन्यथा प्रशासन कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों की ओपन अलॉटमेंट शुरू कर देगा। नकली केवाईसी सत्यापन के बहाने हिमाचलियों से हो रही ठगी की कोशिश, एडवाइजरी जारी। कोविड काल में बढ़ते साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों ने अब नकली केवाईसी सत्यापन के बहाने हिमाचल प्रदेश के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टेट साइबर क्राइम थाने पर नकली सत्यापन के बहाने ठगी के कई मामले सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडिशनल एसपी साइबर क्राइम नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि पिछले कुछ समय में केवाईसी सत्यापन की आड़ में स्कैमर्स उपभोक्ताओं को पर्सनल डाटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उपभोक्ता को अज्ञात नंबरों से एसएमएस संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर उन्होंने अगले 48 घंटों के भीतर अपनी केवाईसी जानकारी सत्यापित नहीं की तो उनके मोबाइल या बैंक खाते आदि की सेवा बंद हो जाएगी। सेवा बंद होने के डर से लोग उन एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और साइबर अपराधियों के चुंगल में फंस जाते हैं। राठौर ने कहा कि अगर ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं तो उन पर ध्यान न दें, क्योंकि वे नकली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां केवाईसी सत्यापन के लिए ग्राहकों तक सिर्फ आधिकारिक चैनलों के माध्यम से पहुंचती हैं, न कि अज्ञात मोबाइल नंबरों के माध्यम से। ऐसे नंबरों पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे एसएमएस में कई तरह की त्रुटियां होती हैं। सप्लाई चेन गिरने से बीबीएन के उद्योगों में गिर गया उत्पादन। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई है। उत्पादन कम होने से ट्रक यूनियन को भी माल कम मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन पर पड़ा है। यहाँ पर पहले 2200 ट्रक प्रतिदिन माल तैयार होकर निकलता था, जो घटकर अब 1600 ट्रक ही रह गया है। प्रतिदिन 500 से 600 ट्रक कम माल तैयार हो रहा है। सबसे अधिक उत्पादन में गिरावट सीमेंट उद्योग में देखने को मिली है। लोग मकान कम बना रहे हैं। पहले बीबीएन 3 सीमेंट प्लांटों में से 1200 ट्रक निकालते थे, लेकिन अब 800 के करीब रह गए हैं। इस दूसरी लहर में उद्योगों में कामगारों की कमी नहीं रही। 10 से 15% कामगार काम कर रहे हैं। इससे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ का उद्योग जगत प्रभावित हुआ है तो सप्लाई चेन से भी प्रभावित हुआ है। लैपटॉप की जगह मेधावियों को अब टैब देगी हिमाचल सरकार। 10वीं और 12वीं कक्षा सहित कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को अब सरकार लैपटॉप की जगह टैब देगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के मेधावियों के लिए शिक्षा विभाग ने टैब खरीदने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। उधर शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 के विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया अभी जारी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इसकी खरीद कर रहा है। 3 बार कंपनियों की ओर से टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के चलते इसकी तारीख को दोबारा से बढ़ा दिया गया है। अब 22 जून को इस बात पर टेंडर खोले जाने हैं। नशीली दवा उत्पादन और तस्करी में फंसी 4 फार्मा कंपनियों की ईडी करेगा जांच। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी के मामलों पर नकेल के लिए प्रदेश पुलिस ने 4 बड़ी फार्मा कंपनियों के खिलाफ वित्तीय जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी संपर्क साधा है। तस्करी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। दरअसल पिछले कुछ समय में पुलिस ने नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत तस्करों पर कार्यवाही की है। इसमें पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मई में पोंटा की यूनिक फॉर्मुलेशन फर्म से 15 करोड़ के 12.5 लाख ट्रामाडोल कैप्सूल के अलावा 30 लाख से ज्यादा नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। सिरमौर पुलिस ने भी इसी फर्म के खिलाफ अवैध रूप से रखे करीब 3 करोड़ रुपए के 745 किलोग्राम ट्रामाडोल के कच्चे माल को जब्त कर कार्यवाही की। आरोप है कि इस फर्म ने अहमदाबाद की एक फर्म को ट्रामाडोल टैबलेट सप्लाई की। यहाँ की 226 किलो ट्रामाडोल बनाने का ये कच्चा माल और 30 लाख से ज्यादा टैबलेट बरामद किए गए। इंटरपोल से अफ्रीकी देश से मिली जानकारी के आधार पर पोंटा साहिब की लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल फर्म पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। भारी बारिश से मलाड में ढही 4 मंजिला इमारत, 11 की मौत, मालिक और ठेकेदार पर दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में बीती रात करीब
11 बजे मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई, जिसमें दबकर 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई लोग मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। इस घटना के लिए इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि मलवानी इलाके के अब्दुल हमीद रोड के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बुधवार को रात करीब 11:15 बजे यह हादसा हुआ। दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों के कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि हादसे में 8 बच्चों और 3 वयस्क लोगों की मौत हो गई है। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में 8, 9 और 13 वर्ष के 3 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। 8 अन्य की पहचान की जा रही है। घायल हुए अन्य 7 लोगों में से एक की हालत गंभीर है। मलबे से निकले गए घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ कैंसर रोगियों का उपचार। टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में कैंसर के रोगियों का इलाज शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते अप्रैल से कैंसर रोगियों का उपचार नहीं हो रहा था। अब दोबारा सुविधा शुरू होने से मरीजों को निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में जल्द सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड फिर मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा। करीब 15 दिन बाद जिला कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर के कैंसर, हार्ट और न्यूरोलॉजी के मरीजों को भी उपचार की सुविधा मिलेगी। बीते मंगलवार को जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों की स्वास्थ्य सचिव के साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी। इसके बाद टांडा अस्पताल प्रशासन ने कैंसर रोगियों के लिए जल्द कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की है। कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और कांगड़ा जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर मई में टांडा अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड को कोविड वार्ड में बदल दिया था। अस्पताल में कैंसर के साथ हार्ट और न्यूरो का इलाज बंद कर दिया था। दैनिक मौतों ने ध्वस्त किए अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 6148 मरीजों ने गंवाई जान। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़े ने सभी को चौंका कर रख दिया है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले तो 1 लाख से कम आए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 6148 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 94,052 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,91,83,121 हुई और एक दिन में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,59,676 हो गई है। 1,51,367 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,76,55,493 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। कोरोना संक्रमित ससुर को पीठ पर उठाकर बहू पहुंची अस्पताल, फोटो खींचते रह गए लोग। असम के नगांव की रहने वाली निहारिका दास समाज के लिए मिसाल पेश की। बेटे का फर्ज निभाकर वह आदर्श बहू बन गई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहू हो तो निहारिका दास जैसी, जिसने अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वह भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर। इस दौरान लोग फोटो खींचते रह गए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आगे आ गया। निहारिका दास की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसमें वे अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाए दिख रही हैं। निहारिका ससुर को पीठ पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर चली। इस दौरान लोगों ने फोटो खींची, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तस्वीर वायरल होने के बाद अब लोग निहारिका को आदर्श बहू कह रहे हैं। हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी निहारिका अपने ससुर को नहीं बचा सकी और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। वाराणसी में स्कॉर्पियो सवार पीएनबी बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 41 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश। वाराणसी में बैंक से घर लौटते समय स्कॉर्पियो सवार पीएनबी बैंक प्रबंधक की 2 बदमाशों ने बुधवार शाम फूलपुर थाना के पिंडराई गांव के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान स्कॉर्पियो में 41 लाख रुपए से भरा एक थैला लूटकर बदमाश दूसरी स्कॉर्पियो से जौनपुर की ओर भाग निकले। स्कॉर्पियो के अंदर बैंक प्रबंधक से पहले 2 बदमाशों ने बैठकर कुछ देर के लिए बातचीत की। इसके बाद गले के दाहिने तरफ सटाकर एक गोली मार दी। पुलिस ने खून से लथपथ बैंक प्रबंधक को एम्बुलेंस के पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे एएसपी ग्रामीण सीओ पिंडरा और फूलपुर पुलिस प्रबंधक के चालक और एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर छानबीन में जुट गई है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकुश न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hilquist News. I am Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकुस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए
हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकुश न्यूज के साथ।